Ladies and gentlemen, those lines, Anando Dhuni Jagao, relive the sounds of joy, enliven the sounds of ecstasy, that kind of echoed through Tagorean strains, deconstructed through a Bharatanatyam performance, which is exactly what we do at Earth, a culture fest. We look inwards with new outlooks, discover, rediscover, revisit, re-explore, reconnect our roots in new perspectives. And as rightly presented by Subhashji, Dr. Chandra in his keynote address, that possibly this is the way forward, this is the roadmap of this country that's going to celebrate 75 years of Azadi Ki Amrit Mahotsav. Moving on to the next panel, I'm reminded of just two lines of a very famous Madan Mohan composition. Humko mili hai aaj ye ghariyan naseeb se जी भर के देख लीजिए हमको करीब से. I know all of you are hearing me at the moment or watching me on screen, on your phone, your television, on your iPads, are possibly filled with the memories of that iconic legend who breathed his last. But when did life stop? After death. And here we are, setting a pretext of these beautiful lines, of the beautiful poetry, through a transcending forum, a panel discussion between two icons, Prasoon Joshi and Nitendra Mishra, Awaaz Hi Pehchan, celebrating Bharat Ratna Lata Mangeshkar, her voice in life. You know, once we start talking about Prasoon, we can actually spend a whole evening of talking about his accolades. But for me, for my generation, Prasoon is a revivalist. He's a poetry revivalist. And he's actually made poetry come back to Indian cinema, Indian film music, the diaspora, in a completely new garb. So much so, Prasoon is also, for me, bears the legacy to the transcendental Gulzarji. Ladies and gentlemen, let's welcome Prasoon Joshi on stage. We shall now invite the man in conversation with Prasoon, who's a celebrated poet, author, and cinema scholar, Yatendra Mishra. He's penned 4 collections of Hindi poetry titled Yada Kada, Yodha Tatha Anya Kavitaएं, and so many others. He's also written about the life and work of Tumri singer Girija Devi, dancer Sonal Mansingh, and Shanai maestro Bismillah Khan. His book, Lata or Surgatha, won 6 awards in a year, including the prestigious 64th National Film Award for 2016 for the best writing on cinema, Swarna Kamal, and Mami Mumbai Film Festival Award for the best writing on cinema. Ladies and gentlemen, let's welcome Yatendra Mishra on stage. The two writers, the two poets, contemplating, transcending the life and the voice of Lata Mangeshkar over poetry and lyrics. Thank you. धन्यवाद अर्थ। आज हमारे बीच हमारे देश की आवाज़
लता जी नहीं हैं, लेकिन आवाज़ के रूप में और अपनी कला के रूप में वो शताब्दियों के पार तक रहने वाली हैं। प्रसून जी, हमारा और आपका जुड़ाव सौभाग्य से दीदी के साथ रहा है, और मेरा तो एक लेखक के तौर पर, और आप तो साथ में आपने इतना काम किया आपके करियर का पहले गाने से ले करके, और जो बिल्कुल नया गाना बनने वाला था। तो मैं चाहूँगा लता जी की जो महानता है और जो उनके संगीत की जो ऊंचाई है, उससे तो सारी दुनिया वाकिफ़ है, और पिछले 10 दिनों में लगातार हम पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम लोग उनके जीवन के उन पलों को यहाँ याद करें जिनसे आपका जीवन बनता है सांगीतिक उनके साथ, और कुछ मेरे अनुभव। तो मैं चाहूँगा कि जो आपकी यात्रा रही है शुरुआत से, उसमें लता मंगेशकर की उपस्थिति और उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो जब से होश संभाला है तब से ऐसा लगता था लता जी होती हैं, लता जी तो होती हैं। मतलब जैसे हवा पानी होता है, आकाश होता है, ऐसे लता जी भी होती। लता जी आती जाती थोड़ी हैं, वो तो हमारे जीवन का, हमारे होने का एक ऐसा, जिसे कहते हैं कि यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू फील दैट शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, बिकॉज सिंस हम बचपन से लता जी के का गीत रेडियो पे आ रहा है, या लता, मतलब हम अक्सर फ्रेजेस में सुनते हैं कि भाई देखो खुद को लता मंगेशकर समझ रही है अभी। मतलब इतना, जिसे कहते हैं कि इन द, it's part of the lexicon, it's common parlance, it is part of your life, you're part of, you breathing living लता जी। So लता जी, मैं ये मानता हूँ कहीं जाती नहीं है, वो हम में ही रहती है और हम में ही गूंजती रहेंगी हमेशा। तो मैं, आई थिंक समवन लाइक लता जी फॉर मी इज बियॉन्ड मॉर्टेलिटी। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है। अब मैं आपको बताता हूँ, लता जी मेटाफर भी हैं। लता जी, अब मुझसे, मैं सोचकर तो नहीं आया था कि फिल्मों में गीत लिखूंगा। मुझे जैसे कि इधर उधर से टकराता टकराता मैं फिल्मों में गीत के पास पहुंचा। अब मुझसे अगर ये कहा जाए कि आपका पहला गीत रिकॉर्ड होने जा रहा है और उसको लता मंगेशकर जी गाने वाली है, तो एज अ यंग बॉय व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगेगा? आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि लता अच्छा। तो मुझे याद है कि कैसे आई वॉज शूटिंग फॉर एन एड इन फिल्म सिटी, और राजकुमार संतोषी जी की फिल्म थी लज्जा। उसका आखिरी गीत जो टाइटल सॉन्ग था वो बचा हुआ था। इलियाराजा जी उसके कंपोजर थे। उस गीत के लिए ही इलियाराजा जी को, लता जी को लाया गया था साथ में, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि वो गीत मैं लिखूं। उससे पहले मैंने कुछ एल्बम की थी, मन के मंजीरे वगैरह, इस तरह की कुछ पोइट्री मेरी थी जो विमेन इमेंसिपेशन एंड द सब्जेक्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट पे थी। तो शायद उसकी वजह से, और मैं टैक्सी में बैठा और मुझे लगा कि ये जिस तरह का टाइम बताया गया कि लता जी पहुंच रही हैं, मैं किसी भी तरह से नहीं पहुंच सकता हूँ। तो मैं फिर टैक्सी से उतरा, ऑटो पकड़ा, स्टेशन पहुंचा। स्टेशन से मैंने धक्का के खाते हुए किसी तरह लता जी से थोड़े 1 मिनट या ऑलमोस्ट द सेम टाइम आई रीच देयर, और उसकी मैं पंक्तियाँ आपको कुछ सुना दूंगा। लोगों को शायद याद भी नहीं होगा वो गीत, कौन शहर कौन डगर कौन शहर तू चली कहाँ, ये गीत था वो। तो अगर उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊं तो शायद उससे कॉन्टेक्चुअल बात हो जाएगी। ये था कि ना कोई धरती है तेरी ना कोई गगन, शाख से पत्ते को जैसे ले चले पवन, कौन डगर कौन शहर कौन डगर कौन शहर तू चली कहाँ, ढूंढ रहे नैन थके अपना आशियां। अब इस तरह से ये गाना था। लता जी, मुझे याद है उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा प्रसून, आप ये बताइए कि पवन जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है?
तो मैं सोचता रहा काफ़ी। मैंने कहा लता जी देखिए, पवन देव भी हैं, पवन चलते भी हैं, और हवा पवन चलती भी है, पवन चले पुरवाई। अब इस पर काफ़ी समय लता जी से जब चर्चा होने लगी तो मुझे पता लगा कि ये लता मंगेशकर क्यों हैं। ये सिर्फ आकर बोला है कि गाना गा नहीं रही, उसको आत्मसात कर रही है, उसे समझ रही हैं, उसके व्याकरण को समझ रही हैं। कई लोग, पीपल टॉक अ लॉट, बहुत ही लफाजी करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बट एक्चुअली इफ यू सी लता मंगेशकर एट वर्क, you will realize why she is Lata Mangeshkar. She is Lata Mangeshkar because she doesn't take being Lata Mangeshkar for granted. एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। ये बात मैं भी कुछ कह सकता हूँ इस संदर्भ में कि जब मैंने उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया तो उन्होंने समय दे दिया कि आप किताब लिख सकते हैं। तो मेरे लिए हर दिन ये चैलेंज होता था कि ये आज का जो दिन है ये शायद अंतिम दिन हो रिकॉर्डिंग का, क्योंकि लता जी को अगर नहीं समझ में आया प्रश्न, या उनका मूड नहीं बना, या उनको लगा कुछ ऐसा ही शैबी सा है, तो हो सकता है दूसरा दिन ना मिले। ने इतनी सुंदर किताब लता जी पर लिखी है, जिन्होंने ना पढ़ी हो, बहुत ही नायाब पुस्तक के रचयिता है। नहीं, बहुत धन्यवाद प्रसून भाई। तो मैं जब उनसे सवाल करना शुरू किया तो मुझे ये एक बात जो समझ में आती थी, जिस भी सवाल को मैं सवाल करता था, चाहे वो मदन मोहन जी पर हो, चाहे वो किसी गीतकार पर हो, तो मुझसे कहें कि कल क्या बात करनी है। दूसरे दिन की रिकॉर्डिंग टेलीफोन पे होती थी और 4-6 महीने के बाद मैं जाके उनको सब दिखाता था। तो दीदी ही सजेस्ट करें कल एस डी बर्मन पे बात कर लें। मैंने कहा ठीक है। अब मैं एस डी बर्मन की तैयारी करके सब करके बैठा रहूं। अब जब दूसरे दिन मैं सवाल करूं पहला एस डी बर्मन पे, उसका तो जवाब वो दे दे, फिर बोले कि यतीन्द्र वो आज सुबह से मेरे दिमाग में आरजू लखनवी चल रहे हैं, आज दिमाग में नूरजहां जी आ गई हैं। अब मैं इतने दिमाग के इतने चैनल खोलने के बाद मुझे लगता था कि अरे आज तो मेरी तैयारी बर्मन साहब पे है। खैर फिर मैंने ये तरीका ईजाद किया कि लता जी एक समय में कई समयों में ट्रांसेंड करती थी, और ऐसा नहीं था कि आपका टेस्ट देती थी, मूड। और जब बात करना शुरू तो जो बात आज कह दी, मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने 6-6.5 साल रिकॉर्ड किया, 6 महीने बाद भी अगर आप सवाल को फ्रेम बदल करके पूछें वैसा ही जवाब निकलता था। मतलब कुछ आर्टिकुलेट नहीं था, जो था वो सामने से था। और जब 20 साल पहले मेरी पहली मुलाकात हुई तो साक्षात सरस्वती लता मंगेशकर, मेरे को कुछ सूझा नहीं, तो वो मुस्कुरा रही है, तो मेरे मुंह से निकल गया कि जब नमस्कार हुआ तो मेरे पिताजी के माध्यम से 2002 की बात है, तो कहती हैं कि मैं उनको कुछ बोलूं तो मेरे मुंह से निकला कि आप बेहद सुरीली हैं। तो जैसे मैं कोई बहुत बड़ा म्यूजिकोलॉजिस्ट हूँ और उनको सर्टिफाई कर रहा हूँ, तब जब वो सब अपने शिखर पर हैं और भारत रत्न मिल चुका है, तो हंस के बोली जी मुझे मालूम है। अब इसके बाद तो कोई सवाल या जवाब हो ही नहीं सकता। तो ये एक बात थी उनके अंदर। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप म्यूजिक सिटिंग्स में बैठते होंगे, पर्सनल मिलते होंगे, सिर्फ गानों की बात तो नहीं होती होगी, कविता भी सुनती होंगी, कुछ और बातें भी होती होंगी। वो क्या था जो आपको लता जी से मिलने के बाद प्रेरित करता था कि गानों की शब्दावली या जो आपके सब्जेक्ट है उसको उस लिहाज से बदला जाए या नए ढंग से सोचा जाए? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मेरे लिए लता मंगेशकर जी से, लता जी से संभाषण संभव नहीं था। सही है। मैं लता जी को सुनता था, और अगर उन्होंने ये कह दिया कुछ नया लिखा है सुनाओ, तो मैं अपना सौभाग्य समझता था कि मैंने कुछ पढ़ के सुनाया। बिल्कुल, क्योंकि हम एक जनरेशन के नहीं हैं और हम लोग तो लता मंगेशकर जी की तरफ देख कर बड़े हुए हैं। तो देयर वॉज सच रिस्पेक्ट फॉर लता जी दैट आई विल ओनली स्पीक व्हेन शी वांट्स मी टू स्पीक, एंड आई विल रिसाइट। मैं बड़ी शिद्दत से अपनी कविता उन्हें सुनाता था, अपने गीत उन्हें सुनाता था। मेरा जो दूसरा गीत उनके साथ इतने सालों के बाद फिर जो रिकॉर्डिंग का मुझे अवसर मिला, वो लुक्का छिपी गीत था जी। आपने शायद सुना होगा गाना। अरे वो तो बहुत ही मशहूर और बहुत ही मार्मिक है। ये गीत जो था
इसके दौरान, और ये देखिए कितने सालों बाद मैं उनसे फिर से ये मिला। लता जी चेन्नई आई, रहमान जी और मैं काम कर रहे थे इस गीत पर, और कुछ 2-3 दिन पहले आ गई। उसको गीत को रियाज करने के लिए, उसे सीखने के लिए। आज टेक्नोलॉजी के युग में लोग अपने घर से रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। शी वॉज सिटिंग देयर, शी वॉज डिस्कसिंग द सॉन्ग, थ्रेडबेयर ऑफ द सॉन्ग। मुझे बहुत प्रिय था यह गीत, क्योंकि ये गीत फिल्म रंग दे बसंती में शुरू में था नहीं, ये एक आफ्टर थॉट था। बैकग्राउंड स्कोर बनाया हुआ था रहमान जी ने। वो बेटे की जो बॉडी है आती है, आपको याद हो, वहीदा रहमान जी हैं, बिल्कुल। और वो जब आती है वहाँ पर म्यूज़िक था। रहमान जी का जो म्यूज़िक था उन्होंने पहले कंपोज कर लिया था। बहुत सुंदर उनकी कॉम्पोजिशन थी, वो हमेशा ही बहुत सुंदर। वो तो रहमान जी का ऐसा है कि वो बैकग्राउंड स्कोर भी इफ ही इज डूइंग इट लाइक अ सॉन्ग। अब वो जो बार्स थे, वो कॉर्ड्स थे, तो उससे एक विचार मेरे मन में आया कि ये जो माँ है, अगर इस माँ और इस बच्चे के बीच अगर लुक्का छिपी का खेल चल रहा है, हाइड एंड सीक, इफ द चाइल्ड एंड द मदर आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, और माँ बच्चे को ढूंढ रही है, और बच्चा ये कहता है, क्या बताऊं माँ कहाँ हूं मैं, यहां उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहां है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिकर उड़ रही है माँ, डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना। माँ कहती है, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। तो ये लुक्का छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। और वो कहता है, क्या बताऊं माँ कहाँ हूं मैं। वो ऐसी जगह छुप गया है जहां से वो नहीं आ सकता। तो मुझे लगा ये आयरनी है, ये एक गीत, ये लुक्का छुपी को ऐसे शायद नहीं प्रस्तुत किया गया होगा कभी, कि जो छुपने वाला है वो बाहर नहीं आ सकता, और जो ढूंढ रही है वो माँ है, और जिसकी नज़र धुंधला गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, लता जी उधर गा रही थी, रहमान गा रहे थे, उस वक्त मेरी आंख में आंसू थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था लता जी कहीं गहराई से बच्चे को सचमुच ढूंढ रही है। उनकी आवाज़ में ये उनकी खासियत थी। देखिए, वो ये लोग जो है ना, ये सुर के साधक लोग हैं, और ये तो सब शब्द और ये फिल्म सब ठीक हो, लेकिन कहीं जो संगीत है वो हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई चीज़ है। वो कहीं अंदर हमारे, संगीत एक ऐसी भाषा है जो अब स्वतः हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाती है। तो वो लता जी जब गा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये संवाद चल रहा है, ये माँ सचमुच अपने बच्चे को ढूंढ रही है। जो अभिनय अंग लता जी की आवाज़ में था वो उसको महसूस कर सकती थी। और फिर बाद में मुझे पता चला कि लता जी ने अभिनय भी किया था पहले, वो मुझे बाद में पता लगा, लेकिन उनकी आवाज़ में हमेशा वो अभिनय अंग रहता था। तो मैं ऐसे ही उनको गा के सुनाता। तो लता जी ने मुझसे ये कहा था, मुझे याद है, कि तुम प्लेबैक क्यों नहीं करते हो, गाते क्यों नहीं हो, रहमान इसको गवाना चाहिए, ही डजंट टेक हिज वॉइस सीरियसली। तो लता जी से ये कॉम्प्लीमेंट मिलना मेरे लिए, मुझे अभी भी याद है। आई कॉल्ड माई मदर एंड मैंने उनको बताया कि लता जी ने आज मुझसे कहा कि तुमको गाना गाना चाहिए, और मैं
बहुत टच्ड हूँ इस बात से. That's the and another thing which I was telling you earlier, इतना रियाज करना, इतना उस चीज़ को परफेक्ट करने के लिए प्रयास करना. देखिए लता मंगेशकर जब आती हैं तो कोई भी आदमी उनको ज़्यादा करेक्ट नहीं करेगा. लता जी का आना ही सौभाग्य समझते थे लोग, हमारी जनरेशन के लोग तो. लेकिन लता जी स्टिल नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. लता जी लगातार प्रयास कर रही हैं कि नहीं ये एक बार और करूँगी. आप कहेंगे कि लता जी बहुत अच्छा था, नहीं अभी आया नहीं. प्रसून जी एक बार और करूँगी मैं. ये क्वालिटी इन लोगों को देख देख कर आप सीख सकते हैं, लता जी जैसे लोगों को. मैंने तो बहुत लोग ऐसे नहीं देखे हैं लता जी जैसे. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. और जो बात आपने कही कि लुका छिपी को सुनते हुए रोना आता है, वो आपके गला भर आता है. पूरा गाना पूरी तरह से एक गो में नहीं सुन पाते हैं. और जो आप कह रहे हैं कि उनको लोग कह नहीं पाते थे या उनका आना ही सौभाग्य था, अर्ली 50s में ही वो मुकाम हासिल कर चुकी थी. 48 का एक सॉन्ग है मास्टर गुलाम हैदर का, पद्मिनी फिल्म का. उस समय जब देश आज़ाद हुआ, 48 में फिल्म रिलीज हुई, 47 में रिकॉर्ड हो रहा था. उनको पाकिस्तान जाना था, उसकी हड़बड़ी थी और दूसरे दिन उनको ट्रेन पकड़नी थी, ऐसा लता जी बताती हैं. रात भर वो बिना खाए पिए स्टूडियो में बैठी रहीं. और जब सुबह भोर में वो गाना रिकॉर्ड हुआ है, बेदर्द तेरे दर्द को सीने से लगा के, तो आप आज सुनिए, उसको यूट्यूब पे मिलता है, तो लगता है कि वो उस ज़माने में 48 में 20 साल की थी, वो 19 साल की. 19-20 साल की लड़की वो जो सोच पैदा कर रही है, वो जो दर्द, वो जो भावना आ रही है, वो मुझे लगता है कि वो लगातार पॉलिश होता चला गया. और लता जी सब चीज़ों के बियॉन्ड चली गई. जो भी मानवीय संवेदनाएं हैं, हम जो महसूस करते हैं, वो लता मंगेशकर की आवाज़ में वो 3 मिनट में पूरी तरीके से दिख जाता है. जिसे अगर हम शास्त्रीयता के अर्थ में कहें, रागदारी के संदर्भ में, बड़े बड़े रागों को वो 3 मिनट में डिसॉल्व कर देती थी. तो ये बात जो है, और 2006 का गाना है, और मेरे ख्याल से उस समय उनकी उम्र कहाँ पहुंची हुई थी. देखिए ये आज के युग में मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है पहले के संगीत में, आज के संगीत में, पहले की फिल्मों में, आज की फिल्मों में. मुझे एक चीज़ जो डिस्कनेक्ट दिखता है आज, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, क्रिएटिव इंडस्ट्री अपने आप में एक बबल बन गया है, बंद क्लोज बबल है. वो कहीं उसके जो जड़ें थी वो पहले क्लासिकल आर्ट में, साहित्य में थी. जो हमारे गीतों का कविता पक्ष इतना अच्छा रहता था, उसका कारण ये था कि उसकी जड़ें साहित्य में थी, कविता में थी. वहाँ से लोग आते थे, शायर आते थे, कवि आते थे, जिनको छंद की समझ थी, जिनको शब्दों का ज्ञान था, जानकारी थी. उस कविता में वहाँ से सींचते थे स्वयं को. और हमारे जो गायक थे, संगीतकार थे, शास्त्रीय संगीत का कोई निष्णात व्यक्ति अगर आता था तो खड़े हो जाते थे. उनके अंदर एक तरह की इज्जत थी. तो कहीं एक सोर्स जो था, आर्ट फॉर्म का जो सोर्स था, फोक में था. हर एक तरह से स्वयं को कंप्लीट नहीं समझता था, कहीं ना कहीं से वो प्रेरणा लेता था और सीखता था. लता जी शास्त्रीय संगीत के जो गायक थे उनको बहुत श्रेष्ठ समझती थी. और उनको कहीं ना कहीं ये मलाल था कि वो शास्त्रीय संगीत के में इतना नहीं कर रही हैं जितना उनके पिताजी उनसे एक्सपेक्ट करते होंगे. ये लता जी ही कहती थी. बिल्कुल सही. और क्योंकि इन लोगों के मन में, उनको मालूम था कि वो एक सुर को साधने के लिए जो घंटों रियाज करते हैं, ये लोग कितना श्रेष्ठ हैं. और ये ऐसा नहीं कि देयर इज एनी हायरार्की. इनफैक्ट लता जी ने जो लो आर्ट और हाई आर्ट के बीच की जो दूरी थी वो खत्म कर दी थी. बिल्कुल सही. एंड आई थिंक आई हैव ऑफन सेड दिस, देयर इज नो हायरार्की इन आर्ट, बट जो साधना करता है, साधक के प्रति निष्ठा होना, श्रद्धा होना, ये लता जी के अंदर आपको लगातार दिखता था. वो साधक किसी भी विधा का साधक हो,
किसी भी विधा का साधक जो है, जो इतना समय लगाता है, जो इतनी तल्लीनता से किसी चीज़ को करता है, वो चाहे कोई भी क्राफ्ट हो, वो अगर वुड क्राफ्ट भी कर रहा है, उसके प्रति जो एक सम्मान है वो आपको सच्चे कलाकारों में दिखाई देगा। तो इसलिए लता जी का जीवन तो और उनका स्पेशली उनका जो कृतित्व है उसको, वो तो एक मतलब रिसर्च का विषय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो आपने कहा कि क्लासिकल म्यूज़िक के संदर्भ में हमेशा से ये रहा कि शास्त्रीय संगीत की दुनिया को एक एलीट, एक बड़े स्तर पे देखा गया और सुगम संगीत को, फिल्म संगीत को थोड़ा सा दोयम दर्जे का माना गया, एक परंपरा चली। लेकिन सारे शास्त्रीय संगीतज्ञ लता मंगेशकर को वो बिल्कुल बराबर से मानते थे या कहीं बड़े लेवल पे जाकर के देखते थे। एक बड़ा मजेदार प्रसंग है बड़े गुलाम अली खान, शास्त्रीय संगीतकार जो हैं कभी नहीं इस तरह के कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये छोटा ये बड़ा जी है। जी, जो साधना जहां उसकी निष्ठा दिखेगी, वही उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कथा, मतलब कहानी है इनकी, बड़े गुलाम अली खान साहब की, कि एक बार उनको गिरगांव में एक कंसर्ट गाना था, तो अपने शिष्यों के साथ जो है वो रियाज कर रहे थे दिन में। तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी उस्ताद कल आज शाम को क्या गाएंगे? तो बोले कि यमन गाते हैं। तो यमन की तैयारी चल रही थी और प्रैक्टिस हो रही थी। अब बड़े गुलाम अली खां, पटियाला घराना, इतना सब कुछ, लेकिन तब तक बगल के फ्लैट से रेडियो से बहाना पिक्चर का गाना बजा, जा रे बदरा बैरी जा रे, लता जी का। थोड़ी देर बाद खिन्न हो गए उस्ताद उसको सुन के, और उन्होंने कहा कि ये जब से लता का यमन मेरे कान में पड़ गया है, मैं अपना यमन भूल गया हूँ। और अपने शिष्यों से कहा अब राग बदलते हैं, अब मैं यमन नहीं गा सकता शाम को, क्योंकि लता का यमन मेरे दिमाग में बैठ गया है। अब ये क्या खूबसूरत बात है। और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन कंसर्ट में उन्होंने यमन नहीं गाया, दूसरा राग गाया। ऐसा नहीं था कि वो यमन नहीं गा सकते थे। तो ये जो एक खूबसूरती है लता मंगेशकर की, कि उनको उस लेवल पर जा कर के शास्त्रीय संगीतज्ञ बड़े स्तर पर देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन सा अनुभव है लता जी के साथ, जो और एक बड़ी कविता पे आप लोग काम कर रहे थे आज के संदर्भ में। पहले देखिए जी, ये जो लता जी एक पॉटेड प्लांट नहीं थी, सही है, वो किसी आंगन में उगने वाला वृक्ष थी, जो अपने, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दो उनको। आप अगर ऐसा समझें कि ऐसा नहीं, लता जी पहले उस गीत की आत्मा को समझती थी, इसलिए शब्दों पर। तो ये आपका ये अर्थ फेस्टिवल भी है, और इससे पहले जो अभी बात भी हो रही थी अर्थ फेस्टिवल पे, कि कैसे जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारा जो किसी चीज़ को सीखना है, क्यों ज़रूरी है कि हम ये भी समझें बढ़ते हुए कि कहाँ हमारी जड़ें हैं। तो मैं इस कविता के माध्यम से कहूँगा कि उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे। आप देखते हैं ना आजकल एक आपको अफरा तफरी दिखती है, ऐसा लगता है कि एंकरलेस पीपल व्हेन यू सी, जल्दीबाजी और हड़बड़ी में। उसका कारण क्या है कि उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। लता जी की जड़ें बहुत गहरी थी संगीत पे, कि उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। तने तने से क्यों हो, तने तने से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे, जितना झुकना तुम सीखोगे उतने ही तुम लहराओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे। अब एक और पक्ष पर आता हूं, आप भी आने वाले थे। तुम तक पत्थर आते हैं, तुम तक पत्थर आते हैं, सौभाग्य तुम्हारा, तुम कुछ दे सकते हो ऐसा भाग्य तुम्हारा। तुम तक पत्थर आते हैं, सौभाग्य तुम्हारा, तुम कुछ दे सकते हो ऐसा भाग्य तुम्हारा। यदि तुम पर यौवन आएगा, पुष्प खिलेंगे, तभी एक दिन महकेगा वैराग्य तुम्हारा। शुष्क शुष्क से क्यों हो वृक्ष मुरझ जाओगे, शुष्क शुष्क से क्यों हो वृक्ष मुरझ जाओगे। जितना अश्रु नहाओगे तुम उतने ही खिलते जाओगे। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है।
जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहां चेतन तुम हो सकते हो। चुप हो जाना और चुप रहना अलग अलग है। शब्द बिना तुम अर्थहीन हो खो सकते हो। सिमटे सिमटे क्यों हो वृक्ष बिखर जाओगे। सिमटे सिमटे क्यों हो वृक्ष बिखर जाओगे। ये शाखाएं नृत्य करेंगी हवा से जब तुम बतियाओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे। जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। बहुत ही सुंदर, और इस कविता को आपने सामयिक बनाया लता जी के संदर्भ में, ये और बहुत अच्छा है। हमारे सामने से जो लोग सुन रहे हैं लता जी को, एक बड़ा अच्छा सा सवाल आया है। मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें कि आपके अनुसार कौन सा संगीतकार ऐसा था जिसने लता जी की प्रतिभा का सबसे बेहतर इस्तेमाल किया। हालांकि इसका जवाब तो दिया ही नहीं जा सकता। नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि आप लता जी का रेpertoire देखिए। मतलब ये चाहे वो मराठी संगीत हो, वहाँ पर उन्होंने जो गाया है, वो किसी भी भाषा में आप देख लें, वो सेमी क्लासिकल हो, भजन हो, वो उनका मीरा हो, या मतलब आप कुछ भी उठाएं लता जी का, तो मुझे लगता है कि पर कुछ एक खूबसूरती थी जब अपने भाई की वो रचनाएं करती थी, उसमें एक नया एक टच होता था। नौशाद जी की, अब आप जिस संगीतकार के साथ लता जी का काम देखेंगी, मदन मोहन जी के साथ देखें, तो ऐसा कहना बड़ा सही नहीं होगा कि लता जी के साथ किसी ने बेहतर किया, किसी ने कम किया। आई थिंक लता जी तो जिसके साथ जुड़ गई वो एक पल्लवित हो गई वो चीज़। तो आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर। किसी और व्यक्ति के लिए शायद आसान हो कहना, पर लता जी तो इतनी जनरेशन्स को छूती हुई चली गई आज तक, मॉडर्न अभी तक। मेरे जैसे व्यक्ति ने, जिसने अभी रंग दे बसंती को आए हुए कितना समय हुआ है, तब तक, और अभी जो मैं गीत उनके साथ कर रहा था, तो लता जी किसी एक के साथ जोड़कर देखने वाली कलाकार नहीं है। बहुत से ऐसे गीत हैं लता जी के जो कम प्रचलित हुए हैं, और जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये भी लता जी का ही था क्या। तो वो सही सवाल, इसका आंसर मैं तो अपने को देने में समर्थ समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ उनका इतना बड़ा रंगपटल है कि सर्वश्रेष्ठ, हर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ आप 20 गाने निकाल देंगे तो कोई एक दो पाए पे नहीं आ सकता। वो लगेगा कि कितना बहाव है। वो बस एक वो वाकया याद आता है कि जब 51 में तराना के लिए अनिल विश्वास ने उनसे गवाया बेईमान तोरे नैनवा निंदिया ना आए, तो अनिल विश्वास ने जाके कहा रिकॉर्डिंग के बाद कि अब हमें एक ऐसी टैलेंट मिल गई है कि अब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जो 50 से एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, फिर मुझे लगता नहीं कि किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए बात कही जा सकती है, क्योंकि हर जगह वो पूरी तरह से लागू है। मैं जानना चाहूँगा कि जिस गीत के लिए लता जी और आप में बात चल रही थी और दुर्भाग्य से वो पूरा नहीं हो पाया, उस प्रसंग का जिक्र जरूर करें आज के संदर्भ में। ये एक गीत था जो लता जी देश की बेटियों को समर्पित करना चाहती थी, और आज मैं पहली बार ये गीत क्या कहें, ये दुर्भाग्य है कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया है गीत, पर मुझे इतना तो सौभाग्य मिला कि इसके दौरान लता जी और मैं अक्सर बात किया करते थे, उनसे मेरी बात होती थी। और ये एक बहुत सिंपल गाना है, लेकिन आप देखिए, हम जब कहते हैं कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो देश में, ये उसका उत्तर है, क्योंकि लता जी बार बार बेटी के रूप में जन्म लेना चाहती थी। और यही मैंने इसमें लिखा है, मोहे जन्म जन्म बिटिया की जो, जब हर एक बिटिया बोलेगी तब धरती आंखें खोलेगी। मोहे जन्म जन्म बिटिया की जो, जब हर एक बिटिया बोलेगी तब धरती आंखें खोलेगी। बाबुल की उंगली थामने जब वो फिर से आना चाहेगी, बाबुल की उंगली थामने जब वो फिर से आना चाहेगी, तब राह हमें मिल जाएगी। नन्हे नन्हे पैरों से जब वो फिर से चलना चाहेगी, आंगन की मिट्टी गाएगी। मोहे ये ही घर अंगना दीजो, जब हर एक बिटिया बोलेगी उम्मीद खुशी से डोलेगी। मोहे जन्म जन्म बिटिया की जो, जब हर एक बिटिया बोलेगी तब धरती आंखें खोलेगी। फिर माँ की छाया बनकर जब वो संग संग चलना चाहेगी,
फिर माँ की छाया बनकर जब वो संग संग चलना चाहेगी, एक धूप बिखरती जाएगी। कच्ची इमली जैसे रिश्ते जब फिर से चखना चाहेगी, बहुत ही सुंदर। कच्ची इमली जैसे रिश्ते जब फिर से चखना चाहेगी, एक नई सुबह मुस्काएगी। फिर सावन वही बुला दी जो जब हर एक बिटिया बोलेगी, फिर सावन वही बुला दी जो जब हर एक बिटिया बोलेगी, तब पंख चिरैया खोलेगी। मुझे जन्म जन्म बिटिया की जो, जब हर एक बिटिया बोलेगी तब धरती आंखें खोलेगी। जहां बार बार बिटिया आए, जहां बार बार बिटिया आए, ऐसा संसार बनाना है। बिटिया की बधाई गूंज उठे, हम सबको द्वार सजाना है। मुझे जन्म जन्म बिटिया की जो, जब हर एक बिटिया बोलेगी तब धरती आंखें खोलेगी। ये बहुत ही सुंदर और मार्मिक और सामयिक टिप्पणी है, और मुझे लगता है कि लता जी जो सब पूरे भारत की नहीं संगीत की दुनिया की बेटी थी, उनके संदर्भ से ये कविता उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि जैसी है। जी जी। और मतलब ये एक दुर्भाग्य की बात है कि एक इतिहास बनने से लता जी की आवाज़ में आने से रह गया, लेकिन आपने जिस रूप में इसको लिखा और बहुत सुंदर ढंग से गाया जाए, मुझे लगता है लता जी के लिए भी ये सबसे बड़ी आदर और श्रद्धांजलि होगी। एक सवाल और है प्रसून जी, हमारे दर्शकों के तरफ से आया है कि क्या फिल्मी गानों के पॉपुलर म्यूज़िक की वजह से हम लता जी के टैलेंट को उस तरह से पूरी तरह नहीं जान पाए हैं जैसा उनका टैलेंट था? देखिए, क्योंकि जब आप असीम से जुड़ जाते हैं, मैं थोड़ा आध्यात्मिक होना पड़ेगा मुझे इसको आंसर करने के लिए। जब आप असीम का स्कूप लेते हैं, वहां से असीम कम नहीं होता है। यही असीम के असीम होने की बात है। जब आप वहां उससे जुड़ जाते हैं जो लता जी थी, तो आपके पास कोई कमी नहीं होती। फिर आपको पाने वाले को लगता है कि तो अभी तो, और ये तो सोर्स असीम है, दिस इज लिमिटलेस। सो व्हेन यू आर कनेक्टेड विद लिमिटलेस, तो फिर तो आपको लगेगा शायद ये भी मिल जाता, शायद वो भी मिल जाता। लता जी ने इतने गीत किए, मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार, कितने हज़ार मुझे नंबर पता नहीं। जॉनर्स देखिए कितने ज़्यादा, कितने जॉनर्स की। उसके बावजूद मुझे इस सवाल से खुशी है। कोई कह रहा है कि हम शायद अगर उनको प्योर क्लासिकल गाते हुए सुनते, हालांकि उन्होंने गाए हैं सेमी क्लासिकल तो बहुत गाए, शायद आपने उनको ख्याल, ध्रुपद, धमार नहीं सुना हो, तो शायद मैं तो कहता हूँ बहुत सुंदर होता। लेकिन वो असीम से जुड़ी थी, शायद उसके बाद भी आपको कमी लगती कि क्या। तो अल्टीमेटली यही तो है, यही तो जब आपके तार जो हैं वो उससे जुड़ जाते हैं जो अनंत है। तो अनंत से जब आपके तार जुड़ जाएंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि लगता है मुझे कुछ और आ सकता था। और ये लता जी, एंड सी आई फील द ग्रेट पीपल, ग्रेट म्यूजिशियंस। मैंने एक गीत लिखा था जो रहमान साहब ने कंपोज किया था, कोक स्टूडियो में आया था वो, मैं जरिया तू जरिया और उसकी कृपा दरिया दरिया, हैं जो अखियां निर्मल दुनिया निर्मल, छलका छलका छल 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 छल। ये था कि वो मैं एक जरिया हूं, आई एम जस्ट अ मीडियम। आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी, आई एम द वायर थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी पासिस। तो मेरे माध्यम से वो पास हो रहा है, तो वो तो अनंत है, वो तो पास होता रहेगा। और हैं जो अखियां निर्मल, आपकी आंखें अगर निर्मल हो तो दुनिया निर्मल हो जाएगी। तो तो रो जाओ, रोते रहो, छलकाते रहो आंखों को, और उससे दुनिया आपको साफ। ये कॉन्टेक्चुअल था, प्रासंगिक था, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। पर लता जी वो असीम का वो कनेक्शन था जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि लता जी इज नॉट मॉर्टल, शी वॉज ऑलमोस्ट गिविंग द डिवाइन टू अस। बहुत ही सुंदर आपने कहा, और जो शाश्वत को छूने वाली जो उनकी स्थिति है, अमरता का मामला है, जो नश्वरता को उन्होंने बिल्कुल झुठला दिया है, वो इसी वजह से है। एक सवाल ये भी था कि क्लासिकल म्यूज़िक
अगर उन्होंने गाया होता तो क्या ऐसा है जो हम नहीं सुन पाते? इसके जवाब में यही कहा जाएगा कि पंडित जसराज ने एक बार कहा था कि अच्छा है कि वो फिल्म संगीत में है, नहीं तो हम लोगों का क्या होता। देखिए मतलब ये एक तरीके की तारीफ है कि जो एक रूपक में तारीफ कर रहे हैं वो। बिल्कुल, मतलब एक और विधा से जुड़ती, एक और आयाम उनका आपको देखने को मिलता। पर वही मैंने कहा कि हमेशा आपको लगेगा कि वो कमी रह गई। और परफेक्शन का नोट कि जब वो नौशाद साहब के लिए नात गा रही हैं बेकस पे करम कीजिए, या जब वो सुधीर फड़के के लिए सड़ा गा रही हैं भोर की महाराष्ट्र का ज्योति कलश छलके, हर जगह वो बिल्कुल प्योर हैं। लगाव जो है सुर का वो इतना सच्चा है कि आप कहीं पे कोई ये नहीं कह सकते कि ये कम है। हाँ, फैली हुई है सपनों की। हाँ। ये मैंने फोक बाद में सुना जी। फैली हुई है जीवन की राहें, आजा चल दे कहीं दूर, ला 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 ला। अब ये हिमाचल में है। माई शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, चंबे निबसना कसौली निबसना, शिमले जाना जरूर हो, फैली हुई है। अब ये जो उन्होंने खटके उनके आते थे, जीवन की राहें आजा चल दे कहीं दो, जो इग्नोरेंस और ट्रेनिंग का जो फर्क है। लता जी कई बार इतनी मुर्कीदार, इतनी खटकेदार आवाज थी, आप देख सकते थे कि यहां पर लता जी ने रिस्ट्रेन किया है। लता जी इतनी मुर्कीदार आवाज से ऐसे ऐसे चलती थी, और कई बार वो अपने को रिस्ट्रेन करती थी, और उस रिस्ट्रेन का जो मजा होता था, देखिए जानते हुए न करना, जो अवकाश उससे पैदा होता है, पॉज जो क्रिएट, वो जो पॉज क्रिएट होता है, कि वो चाहती तो उस्तादी दिखा सकती थी, लेकिन वो उस्तादी वहां पे अपनी रोकती थी। और मैं उसको जब भी सुनता था मुझे लगता था देखो, और कई बार बच्चे जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं वो उसमें अननेसेसरी अलंकरण उसका करते हैं, क्योंकि अपनी उस्तादी दिखाने का शौक होता है हर एक को जब नया नया संगीत सीखता है। पर लता जी जो थी वो रिस्ट्रेन भी करती थी, और वो रिस्ट्रेन आपको इतना प्रभावित करता था। कई संगीतकारों ने उसका जिक्र किया है कि वो उस गली में जाने से एक स्टेप पहले रुकती थी कि सही है, हाँ, इसमें मैं उस्तादी नहीं दिखाऊंगी, यहाँ पे सिंप्लिसिटी से काम चलेगा। लेकिन वो मजबूरी नहीं थी, हाँ, वो क्रिएट करती थी वहां पे। वो आपको पता लगता था एज इफ शी हैज एक्चुअली टेकन दैट नोट, यूज्ड टू फील दैट ये इन्होंने ये मुर्की, ये हरकत उन्होंने करने से स्वयं को रोका है। और ये जो बहुत ही जो सिद्धहस्त लोग होते हैं वही कर सकते हैं। बहुत सारे गाने हैं गाइड का, मुझसे छल किए जाए में, जब मुझसे जब वो छल करती हैं तो वो आगे की बात के पहले वो आपके आगे बैठ जाता है। अनुराधा का वो गाना है कैसे दिन बीते कैसे बीती रतियां पिया जाने ना, तो उसमें जो हाय आता है उस पर शुभा मुद्गल जी कमाल का नोट लिखती हैं कि कैसे हाय करती हैं वो। ए दिले नादा आरजू क्या है जुस्तजू क्या है, उसमें हर लाइन के बाद जो पॉज है और उसके बाद फिर वहीं से सुर की उठान, तो वो बिल्कुल वो उनका अपना मामला था। और कई दफ़ा उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं उनसे इंटरव्यू रिकॉर्ड करता था, बोले मुझसे तमाम लोग, मदन मोहन जी, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, इवन सलील चौधरी कहते थे कि हमने ये गाना बना दिया है आपके लिए, लेकिन आप कहीं भी कोई भी चीज़ कर सकती हैं। मतलब जब रिकॉर्डिंग के समय वो लोग बैठे होते थे स्टूडियो में, तो म्यूजिक डायरेक्टर को भी पता नहीं होता था कि अभी ये क्या नया खेल करने वाली हैं जो हमारे उसमें पूरा पैराफ्रेजिंग में नहीं है मौजूद। अब आप देखिए देशभक्ति के जो उनके गीत हैं, मतलब एक तो वो मैं समझता हूँ सच्ची राष्ट्रभक्त थी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके आप करियर को शुरू से देख लीजिए, देश के प्रति एक बिल्कुल समर्पण उनके अंदर हमेशा था। और कई लोगों को लगता है कि ये क्या नई चीज़ थी, ऐसा कुछ नहीं। लता जी को आप पहले से देखिए, स्टडी कीजिए, देयर इज़ अ ह्यूज कंसिस्टेंसी इज व्हाट शी इज़।
प्रॉब्लम यह है कि लोग लेंस से देखने लगते हैं कि एक लेंस लगाया, उससे आर्टिस्ट को देखना बड़ा अन्याय होता है। आर्टिस्ट के लिए ऐसे देखना, क्योंकि उसके एक कलाकार के, और मैं भी इससे कई बार गुजरता हूँ, देखिए आपके अंदर अलग अलग मुद्राएं हैं, आपके अंदर अलग अलग भावनाएं हैं। आप अगर श्रृंगार, वही श्रृंगार शतक लिखते हैं जो नीति शतक लिखते हैं, जो वैराग्य शतक लिखते हैं, बिल्कुल है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो दो भावनाएं नहीं है कि अगर ये रोमांटिक गाने गाता है तो ये देशभक्ति के गाने कैसे गाए। हाँ, मैं वही हूँ जिसने लिखा है तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं, और हाँ मैं वही हूँ जिसने लिखा है थोड़ी सी धूल मेरी मिट्टी की मेरे वतन की। हाँ, मैं वही हूँ जिसने लिखा है मैं रहूँ या ना रहूँ भारत ही रहना चाहिए। अलग अलग तरह से अपना प्रेम आप व्यक्त करते हैं। प्रेम कहीं डीप डाउन एक विशुद्ध भावना है। वो देश प्रेम के रूप में व्यक्त हो सकता है, वो ईश्वर प्रेम के रूप में व्यक्त हो सकता है, वो मित्र के प्रति एक तरह का भाव लेकर आ सकता है, वो माँ के प्रति एक तरह का प्रेम लेकर के आ सकता है। वो, लेकिन प्रेम अपने आप में एक विशुद्ध भावना है जो परिलक्षित होती है, प्रकटीकरण उसका जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है। तो आपको ये अधिकार नहीं रखना चाहिए कि सिलेक्टिवली, आपने कहा लता जी का जो ये प्रेम का पक्ष है ये तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लता जी का ये प्रेम का पक्ष अच्छा नहीं लगता। प्रेम में कहाँ मिलावट कर रहे हैं आप? बिल्कुल प्रेम सही, तो प्रेम है, वो विशुद्ध है। बहुत सुंदर। और जब देशभक्ति के गीतों की बात हो रही है तो आपको याद करना चाहिए है मेरे वतन के लोगों, पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा जो समर में हो गए अमर, अमर भूपाली का, घनश्याम सुंदरा, श्रीधरा, अरुणोदय झाला, और पूरे मंगेशकर परिवार मिलकर जो सावरकर का गीत गाता था, सागरा प्राण तड़मड़ला, क्या खूबसूरत गीत है। मैं इसके अंत में हमारे इस लता जी को याद करने का जो ये सिलसिला है ये तो थम नहीं सकता, हम लोग घंटों बात कर सकते हैं उनके आदर में। मैं एक सवाल करना चाहूँगा आखिर में आपसे। आप जो लता जी की अनुपस्थिति है फिल्म संगीत में, इसको समझना भी बहुत तकलीफदेह है। क्या गीतकार जो नए आएंगे या खुद आप जब गाने लिखेंगे तो क्या एक अफसोस नहीं रह जाएगा कि ये जो मैं गीत लिख रहा हूँ, हमारे समय की जो सबसे मुखर उपस्थिति थी, लता जी को जो ध्यान में रख के गीत लिखे जाते थे, अब लोग उससे वंचित होंगे और वो उस आवाज़ का स्थानापन, उस आवाज़ का रिप्लेसमेंट क्या हम ढूंढ पाएंगे? एक गीतकार के रूप में मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें। तो कितने गीत हैं जो मैं चाहूँगा कि लता जी एक एश्योरेंस थी। लता जी एक ऐसी आवाज़ थी जिस पर एक गीतकार भरोसा करके कुछ भी लिख सकता है, और आपको ऐसा लगता था कि उसमें प्राण आ जाएंगे। ऐसी पराकाष्ठा, ऐसी स्थिति, शायद यहाँ तक पहुँच पाना बहुत भगीरथ, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है, ईश्वर की ही रचना है सब, और इस प्रकृति का ही हिस्सा हैं हम। और अगर आप देखें प्रकृति में ही सब कुछ समाहित है, उसी के भिन्न भिन्न रूप हमको दिखते हैं। तो ऐसा कहना कि कभी ऐसा नहीं होगा ये अन्याय होगा, लेकिन संभव और आसान नहीं हो सकता। और जो सुरों की पकड़ थी, मैं इसी से ख़त्म करूँगा, जो मैं गुनगुना रहा था और लता जी सुन रही थी। वो एक गीत है सीखो ना, आपने सुना होगा। हाँ। उन्हें भी पसंद आया था। सीखो ना, ये शुभा जी ने गाया, शुभा मुदगल जी ने। और ये ऐसी आवाज़ है जिसको आप लता जी के लिए भी सोच सकते हैं कि वो भी गा सकती हैं। ड्यू रिस्पेक्ट टू शुभा जी। कि सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ, सीखो ना पिया, लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया।
बहुत धन्यवाद प्रसून भाई। अर्थ फेस्टिवल की तरफ से आप सभी लोग जुड़े रहे, लता जी को याद करते हुए और उस पूरी परंपरा को याद करते हुए। लता जी जीवंत हैं, शाश्वत हैं, उनका सुर अविनाशी है और वो एक ऐसी सांस्कृतिक घटना है भारत में और संपूर्ण दक्षिण एशियाई देशों में जिनका होना हमेशा शताब्दियों के आर पार याद किया जाता रहेगा। आप सबका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रसून जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत बहुत। हमेशा आपका सानिध्य मिलना सौभाग्य होता है। मेरे लिए बहुत बहुत खूबसूरत बात है कि आपके साथ इतनी बात हो पाती है। थैंक यू।